Good afternoon, friends. Once again, welcome to each one of you in this CASA platform where today's webinar on the Company Act compliances, and especially welcome to Devesh Goyalji, CS Company Secretary, for giving your precious time in this festive time, and to all participants joining here. And today we are going to discuss latest amendment in Companies Act like significant beneficial owner, demat of shares of private company, and criticalities in annual filing. So if you have any doubt relating to ROC compliances, you can post in the chat box. And next 1 hour, we will discuss as per the agenda. So welcome to each one of you once again. And about Devesh Goyalji, I think no need for introduction as he is very known, popular face in the field of company jet corporate compliances. He delivered, I think, more than 500 somewhere lectures and article की अगर मैं बात करूं तो many hundreds articles भी इन्होंने लिखे हैं. एंड अगर आप गूगल करते हैं किसी भी टॉपिक पे कंपनी एक्ट पे देन डेफिनेटली यू विल गेट फर्स्ट नेम CS देवेश गोयल. So welcome to you. Over to you, Devesh bhai, for your deliberation. Thank you so much, Smith bhai, for giving me an opportunity to interact with all the members on the recent amendment of the Companies Act. So first of all, happy Diwali to everyone in advance. And thanks to everyone who is participating in this webinar in this busy schedule. Weekends as a festive season and the festive schedule, everyone is busy still. I can see many faces are here. So thank you so much, everyone, for your time for this webinar. So today in this webinar, as Smith bhai has already said, we are going to discuss about the latest amendment under Companies Act. We know there are the amendment under Companies Act on the regular basis. Every day we are seeing so many amendment under Companies Act. Even since 2013, it's been a year. And it's been a decade of the 10 years since 2013 to 2023. But still, so many amendments we are facing on the regular basis under Companies Act. So our today's motto of this 1 hour webinar to discuss about the latest amendment. So at least because the reason is that as a professional, everyone should be aware about the latest amendment. What are the latest amendment under Companies Act? So let's discuss one by one all the latest amendment under Companies Act for the, we can say, purpose of the beneficial for everyone. Number one, in today's era, we know the latest amendment which is issued by the Ministry of Corporate Affairs that is relating to the dematerialization of the shares. Recently, Ministry have issued a notification and they have made some amendment in the provision of the dematerialization of the shares. So let's start our discussion with this dematerialization of shares. And one more thing before starting this webinar, this presentation, whatever I'm sharing on the sharing screen here, I will share all these presentation with Sumitji, and all these presentation are also published on my website, that is csdeveshgoyal.com also. So anyone want to read it, you can read it. So don't waste your time in today's webinar to write anything, because you can spend your whole time to understand and discussion of the things. So let's discuss the first and the latest amendment by the Ministry of Corporate Affairs. That is issued by the notification dated 27th October 2023. So 10 days back, MC has issued a notification. By that notification, they make it mandatory to demat the securities of the private limited companies. As we know, in 2018, 2nd October 2018, Ministry of Corporate Affairs made it mandatory for the public limited companies to apply dematerialization on their securities, but private companies was out of the preview of these companies. So public company की बात करते हैं, 5 साल पहले public company पे ministry ये provision mandatory apply कर चुकी है, but अभी तक प्राइवेट कंपनी पे इन प्रोविजंस का कोई भी ऐसा रूल नहीं था. प्राइवेट कंपनीज पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते थे, बट recently 27th October, just 10 days back, ministry have issued a notification by companies prospectus and allotment second amendment rule 2023, and प्राइवेट कंपनीज के लिए भी डीमेटलाइजेशन को मैंडेटरी करने के लिए रूल पब्लिश कर दिया है. अब सबसे पहली चीज, ये नोटिफिकेशन तो आया 27 अक्टूबर को, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? बिकॉज समटाइम इट हैपन, मेनी टाइम वी हैव सीन कि नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में, उसी दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएगा सभी कंपनीज पर.
But according to this notification of the 27th October, this will be applicable on the private companies with effect from the 30th September 2024. This is a very important date, so I just request everyone, please note down this date. 30th September 2024 is the date from which the provision of the demat of the share of the private company will be mandatory applicable on the private limited companies. अब जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एज वी नो, कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल कंपनी एंड नॉन स्मॉल कंपनी। सो इस नोटिफिकेशन के लिए भी मिनिस्ट्री ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है डीमेटलाइजेशन प्रोविजंस को, स्मॉल और नॉन स्मॉल। अगर आपकी कंपनी एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, देन डीमेट के प्रोविजन अभी उन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। But if your company is a non-small company, then the provision of the dematerialization will be applicable on your company mandatorily from 30th September 2024. 30th September 2024 से वो mandatorily applicable हो जाएंगे आपकी companies पर. So you have to do one task which is very important as a professional, as a chartered accountant, or as a, we can say, company secretary, that you have to identify your companies कि कौन सी companies आपकी small है और कौन सी non small है. So 31st March 2023 की बैलेंस शीट आपको देखनी पड़ेगी कि as per 31st March 2023 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी स्मॉल है या नॉन स्मॉल है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल है, then the provision will not applicable on them. But if your companies are non-small, then the provision of the dematerialization will be applicable on your company. So इसके लिए जो provisions है वो है section 29, that is rule 9 of the company's prospectus and allotment of second amendment rule 2023. तो सबसे पहले बात करते हैं जब हम स्मॉल एंड नॉन स्मॉल की, तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस इन अ डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्मॉल कंपनी। Although everyone is aware about the definition of the small company, still many times we have received the questions, the queries of the small company definition, like at the time of the Caro applicability, at the time of the applicability of the cash flow. Wherever I was taking the seminar, wherever in the social media, I was receiving the questions from the chartered accountant and company secretaries about the exact definition of the small company. So today in this webinar, I just want to clarify on the small company. Small company means a company which is having the paid up share capital up to 4 crore and turnover up to 40 crore rupees. If both these conditions are fulfilled, then a company shall be considered as a small company. But one thing is important, to become a small company, both the conditions should be fulfilled. Like one condition, the capital up to 4 crore and turnover up to 40 crore. If we are meeting with the both the condition, then company will be considered as a small company. But if you cross any one limit, means I will say my paid up capital is 1 lakh rupees, but my turnover is 41 crore, then I will be out of the preview of the small company. And the situation can be vice versa. My paid up capital is 5 crore, but my turnover is rupees 1 lakh only. Then again, this company shall be considered as a non-small company. To become a small company, both the conditions are required to be fulfilled. Except that there are certain exemptions from this definition, like a public company can never be a small company. Only a private company can be a small company. Here it is mentioned other than public company. So one is public company will always be a non-small company. It doesn't matter what is the capital of or turnover. Second, a company registered under Section 8 company. A Section 8 company shall always be considered as a non-small company. It will never be considered as a small company. Third, a holding company or subsidiary company. This is a very important point because generally it is very clear about the turnover, it is very clear about the paid up share capital, but generally the confusion, we can say the confusion created at the point where there is a holding or subsidiary relationship. Now, if I will say there is a private limited company, I'm just giving you a situation to understand in a better manner. There is a private limited company, and that private limited company is fulfilling both the condition, paid up capital and turnover, but that private company is a subsidiary or holding of any other company, then such company shall be out of the definition of the small company. So turnover or paid up capital is the one criteria, but अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, देन पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया मैटर ही नहीं करता है. Then your company will be considered as a non-small company.
सो वन मोर थिंग हेयर, अब जब नॉन स्मॉल की बात करते हैं, अगर हमारी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी या किसी फॉरेन कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी है, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर एज अ नॉन स्मॉल कंपनी। सो जब भी आप स्मॉल कंपनी और नॉन स्मॉल कंपनी का आइडेंटिफिकेशन करें फॉर एनी ऑफ योर क्लाइंट, फॉर एनी ऑफ योर कंपनी, make sure that identification should not only be basis of the capital or turnover, but that identification differentiation will be on the basis of the other conditions also. So that thing you have to keep in mind. Still किसी का कोई अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, please feel free to ask in the chat box regarding the small company, because the purpose why Sumit ji have holding this webinars कि जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी की क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए, उन सभी के प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। एंड दिस इज माय ओल मोटो ऑल्सो कि जितना भी हम डिस्कस करें आज इस वेबिनार में, एटलीस्ट डिस्कस जितना करें वो सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो आई थिंक वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल कंपनी। अब आते हैं डीमेट के प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। देखो, जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं ना, पब्लिक कंपनीज पे तो ये एप्लीकेबल हो चुके हैं 2 अक्टूबर 2018 से, और प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो स्मॉल कंपनी पे तो एप्लीकेबल नहीं है अभी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मिनिस्ट्री कोई नया नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट नहीं लाती है, टिल दैट टाइम स्मॉल प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो प्रोविजन ऑफ द डीमेट विल नॉट बी एप्लीकेबल, सो इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी with effect from the 30th September 2024. So hope it is one point we are clear at this point. सेकेंड थिंग, इनके अलावा ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते? दी निधि कंपनी, एज पर द मिनिस्ट्री, निधि कंपनी के ऊपर डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्सिडरी, आई एम सेइंग होली ओन सब्सिडरी, अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है तो उसको डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और स्मॉल कंपनी पे तो नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है विच डेफिनेटली मिनिस्ट्री को क्लियर करना चाहिए, कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन इश्यू करके या किसी अदर वे में मिनिस्ट्री को वो एम्बिग्यूटी क्लियर करनी चाहिए। द एम्बिग्यूटी इज दैट कि होली ऑन सब्सिडरी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी है तब तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बट जो प्राइवेट कंपनी की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें प्राइवेट कंपनी की होली ऑन सब्सिडी को कहीं भी एग्जाम्पशन नहीं दी है। सो एज ऑन डेट देखो, हम बात जो करेंगे हम लीगल बात करेंगे और हम सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो एज पर करंट प्रोविजन, अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है तब भी आपके ऊपर डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। डीमेट के प्रोविजन में जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ उसी केस में है जब आप किसी पब्लिक कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है। सो एक यहाँ पे ही एक थोड़ा सा प्रोविजंस में मिनिस्ट्री की तरफ से अमेंडमेंट एम्बिग्यूटी है विच दे शुड क्लियर बाय अ नोटिफिकेशन और सर्कुलर। सो किसी का कोई डाउट है एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी पे, प्लीज आस्क, बिकॉज आई जस्ट वांट कि हम साथ के साथ डाउट भी क्लियर करें, बिकॉज उससे क्या होगा कि एक प्रोविजन प्रॉपर्ली क्लियर होगा। अब जैसे कि हेमंत जी का एक क्वेश्चन है, सेक्शन 8 डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, देन व्हाट टू डू, राइट? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, सेक्शन 8 कंपनी जो विदाउट शेयर कैपिटल बनी है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द गारंटी या नंबर ऑफ मेंबर, ऐसे ही पब्लिक और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है अदर देन शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है, कंपनी अदर देन शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस पर डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। डीमेट के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपकी कंपनी ने कुछ सिक्योरिटीज को इशू किया है। अब किसी का क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी ऑन 31st March 2023 but on March 2024 it is a non small company, what should be done in this case? See, इसी एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए राधिका जी का क्वेश्चन है, मैम इसी एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली लिखा है कि डीमेट के प्रोविजंस के लिए जो आपको स्मॉल और नॉन स्मॉल का स्टेटस देखना है वो 31st March 2023 का देखना है। अगर 31st March 2023 को आप स्मॉल कंपनी हो, कोई इशू नहीं है, जिस दिन आप नॉन स्मॉल बनोगे आपके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट 31st March 2023 को तो आप नॉन स्मॉल हो और 31st March 2024 को स्मॉल हो जाते हैं एज पर योर क्वेश्चन, then also the provision will be applicable, और once this provision will be applicable, this will be applicable throughout the life of the company। ऐसा नहीं है कि आज मैं नॉन स्मॉल कंपनी हुआ तो मैंने अप्लाई कर दिया डीमेट में, कल मैं स्मॉल हो गया तो मैंने डीमेट से चेंज कर दिया, नहीं। once this provision will be applicable, this will practically will be applicable throughout the life of the company। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज मैक्सिमम पीपल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैव जॉइंड दिस सेमिनार वेबिनार, ये ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बिकॉज इस साल के ऑडिट पे तो चलो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जब आप 24-25 की ऑडिट करोगे आपको स्पेसिफिकली ऑडिट रिकॉर्ड में क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल हो गए होंगे प्रोविजन और कंपनी ने अप्लाई नहीं किए होंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो में 3-4 चीजें होती है। अब जब मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया कि 30 सितंबर तक आपको अपने कंपनी पे डीमैट के प्रोविजन एप्लीकेबल करने हैं, अब इनको 2-3 इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट आएगा कंपनी के ऊपर, एक इम्पैक्ट आएगा मैनेजमेंट के ऊपर और एक इम्पैक्ट आएगा शेयर होल्डर के ऊपर। हम वन बाय वन तीनों इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के ऊपर, जैसा मैंने बोला था 2 अक्टूबर 2018 के बाद अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया था कि उनको अपनी सिक्योरिटीज को डीमैट में कन्वर्ट करवाना है। और 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के बाद कोई भी नॉन स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ना तो कोई ट्रांसफर, ना ही कोई इशू ऑफ सिक्योरिटीज, बाय बैक, बोनस इशू, राइट इशू कर पाएगी विदाउट डीमैट। मतलब एग्जांपल 30 सितंबर 2014 तक आपकी कंपनी ने डीमैटेरियलाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, आईएसआईएन नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया। उसके बाद अगर आपकी कंपनी को कोई नए शेयर इशू करने हैं या नए बायबैक करने हैं या बोनस इशू देना है, राइट इशू देना है, वो नहीं दे पाएगी इन फिजिकल फॉर्मेट। उनको इन सभी ऑफर्स के लिए डीमैट में होना मैंडेटरी है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑफ एवरी नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, समटाइम लोग बोलते हैं कि सर हमें कोई राइट इशू देना ही नहीं है, बोनस देना ही नहीं है, बायबैक देना ही नहीं है, ना ही कोई ट्रांसफर करना है, तो मैं क्यों फिर डीमैट में जाऊं, मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे चलने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर है। कंपनी इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकती कि मेरे शेयर होल्डर को कोई ट्रांसफर नहीं करना है, वो शेयर होल्डर की पर्सनल विल है। और एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स डायरेक्टर एंड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। सो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मुझे तो कभी ट्रांसफर करना ही नहीं है, ये शेयर होल्डर का राइट है, शेयर होल्डर की विल है, कंपनी कैन नॉट टेक दैट डिसीजन। सो कंपनी को इस केस में क्या करना पड़ेगा? कंपनी को तो, हर नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी को तो 30 सितंबर 2024 तक डीमेटलाइजेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, आईएसआईएन नंबर के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि वो इसके लिए अप्लाई ना करे। सो इट इज मैंडेटरी ऑन देम। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। अब अगर किसी सिक्योरिटी होल्डर को अपने कोई शेयर ट्रांसफर करने हैं, अगर वो 30 सितंबर 2024 तक अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है फ्रीली, जैसे आज तक करता आया था फिजिकल मोड में। बट 30 सितंबर के बाद अगर नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो सिर्फ डीमैट में ही ट्रांसफर कर पाएगा, फिजिकल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अब इन प्रोविजन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आएगा? इन प्रोविजन का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये आएगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर विल बी नो बैकडेटेड ट्रांजैक्शन, नो बैकडेटेड ट्रांसफर ऑफ शेयर, नो बैकडेटेड बाय बैक, राइट इशू और एनी अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सो 30 सितंबर ट्रांजेक्शन करना है तो फिर वो 30 सितंबर से पहले उन्हें करवाना पड़ेगा। 30 सितंबर 2024 के बाद अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कोई ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो सिर्फ डीमेट में हो पाएगा, पर्सनली नहीं हो पाएगा। होप वी आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। प्लीज अगर कोई डाउट है तो साइमल्टेनियसली आप पूछ सकते हो। अब प्रोसेस क्या होगा, इस सभी कंप्लायंस को करने का प्रोसेस क्या होगा? देखो प्रोसेस का स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में कंपनी को एक डीमेट एजेंसी के साथ आईएसआईएन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में पहला काम है कंपनी का कि कंपनी को आईएसआईएन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज जब कंपनी आईएसआईएन अप्लाई करेगी, आईएसआईएन मिलेगा, उसके बाद ही कंपनी अपॉर्चुनिटी दे पाएगी अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी शेयर होल्डर्स को उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी दे पाएगी कि वो लोग शेयर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन कर पाए। और अगर कंपनी नहीं करती है आईएसआईएन अप्लाई तो ये सेक्शन 450 के अंदर पेनल्टी के लिए लाइबल होगी। और पेनल्टी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर 10,000 रुपीज और कंटिन्यूड डिफॉल्ट के ऊपर विद फर्दर फाइन और 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द कंट्रोवेंशन कंटिन्यू। मतलब 10,000 प्लस 1,000 पर डे ऑन द कंपनी एंड 10,000 प्लस 1,000 पर डे ऑन द डायरेक्टर। ये पेनल्टी के लिए लाइबल हो जाएगी कंपनी। और आज की डेट में यू ऑल विल बी अवेयर
आज की डेट में आरओसी एडजुडिकेशन के वैसे भी बहुत नोटिस इशू कर रही है, बहुत पेनल्टीज इंपोज कर रही है, और सबसे बड़ी चीज मेजर डिफॉल्ट्स के लिए तो पेनल्टी इंपोज हो ही रही है, स्मॉल डिफॉल्ट्स के लिए भी पेनल्टी इंपोज हो रही है। लाइक आपने कोई फॉर्म डिले से फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट, उसके ऊपर भी बहुत पेनल्टीज आज की डेट में मिनिस्ट्री इंपोज कर रही है। फर्स्ट स्टेप कंपनी को आईएसआईएन अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप कंपनी को 30 सितंबर 24 से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद एवरी हाफ ईयर में एक नई रिटर्न फाइल करनी है आरएसी को इन फॉर्म PS6, द रिटर्न ऑफ द रिकंसिलेशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑडिट। सो अब नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनीज के लिए एक नया कंप्लायंस आ गया है, नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनीज के लिए एक नया कंप्लायंस एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनीज एक्ट में, दैट इज फाइलिंग ऑफ PS6। और ये हाफ ईयरली कंप्लायंस है, एवरी हाफ ईयर कंपनीज को ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास विद इन 60 days ऑफ एंड ऑफ द हाफ ईयर। दिस इज द सेकंड कंप्लायंस। अब थर्ड आता है। अब थर्ड में कंपनी को जिस एजेंसी के साथ अपना आईएसआईएन अप्लाई किया है उनकी पेपरली फीसेस पे करनी है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इम्पैक्ट। कंपनी को आईएसआईएन अप्लाई करना है, कंपनी को हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी है, और कंपनी को रेगुलरली अपनी फीसेस पे करनी है डीमेट एजेंसी के साथ। शेयर होल्डर शेयर होल्डर के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है कि उन्हें 30 सितंबर तक अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करवाना है, बट जब तक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट नहीं करवाएगा तब तक शेयर होल्डर कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको कोई ऑफर नहीं मिलेगा, लाइक बाय बैक, बोनस, राइट इशू, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर द प्रोविजंस कि अब डीमेट के प्रोविजन नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनीज पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग न्यू, और डेफिनेटली न्यू के साथ एक और चीज है कि दिस इज वेरी स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस, और इसका अल्टीमेटली जो हम इम्पैक्ट है ऑडिटर्स पे आएगा, बिकॉज अगर हमने जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं 24-25 में, उस कंपनी ने अगर आईएसआईएन अप्लाई नहीं किया तो हमें उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी कि कंपनी ने इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया है और उन्होंने आईएसआईएन अप्लाई नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने 30 सितंबर के बाद फिजिकल में शेयर ट्रांसफर किए हैं और कंपनी ने उसे एक्सेप्ट भी किया है और रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल भी दिया है, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन कंप्लायंस जो एज अ ऑडिटर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एज अ ऑडिटर अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीज इन मेनी फोल्ड बाय दिस प्रोविजन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज अ ऑडिटर अबाउट दिस प्रोविजन। होप आई एम क्लियर अबाउट दिस कंप्लायंसेस। स्टिल अगर किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अबाउट द सेम। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड पॉइंट जो आज की इस वेबिनार में गोइंग टू डिस्कस, दैट पॉइंट इज रिलेटिंग टू द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। व्हाई आई एम सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजन? ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजन ना 2020 में ही सभी कंपनीज पे, 2019 में प्रैक्टिकली सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल हो गए थे, और रिसेंटली अगर किसी कंपनी के अगर नोटिस रिसीव किए हैं, लास्ट टू लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 2000 कंपनीज को पेनल्टी नोटिस इशू किए थे। मतलब आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट वन टाइम नोटिस पेनल्टी इम्पोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उन्होंने 2000 कंपनीज के ऊपर नोटिस इशू किए थे, उन पर पेनल्टी इम्पोज की थी। व्हाई? सिर्फ एक छोटा सा रीजन था उसके पीछे, उतनी पेनल्टी इम्पोज करने के पीछे, कि उन कंपनीज ने अपना बैंड 2 जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का फॉर्म है वो बैंड 2 डिले से फाइल किया था। सो एक छोटा सा नॉन कंप्लायंस के एक फॉर्म डिले से फाइल करना, मतलब प्रैक्टिकली मैं प्रोफेशनल्स मीटिंग्स में जनरली डिस्कस करता हूँ कि फॉर्म डिले से फाइल करने को हम लोग जनरली नॉन कंप्लायंस भी नहीं मानते हैं, बट उसके ऊपर 2000 कंपनीज के ऊपर पेनल्टी इंपोज की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने। सो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजंस को लेके मिनिस्ट्री बहुत इस टाइम हम बोल सकते हैं कि अवेयर है, बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो आपको एसबीओ के प्रोविजंस में कहीं भी नॉन कंप्लायंस नहीं करना है। और रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा, लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सभी कंपनीज को और डायरेक्टर्स को उनकी मेल आईडी पे एडवाइजरी इशू की थी रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब जो मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी इशू की थी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की, उस एडवाइजरी का सिंपल मीनिंग था कि वो दे वर मेकिंग अवेयर द एवरी प्रोफेशनल एंड एवरी डायरेक्टर about the provision of the significant beneficial owner। they were very clear about that कि सभी को इस पे फोकस करना है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे।
तो यहाँ पे हम एक बहुत छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन या पॉइंट आया था मेरे पास कि अब जो एडवाइजरीज मेल आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, अब आपके भी काफी सारे क्लाइंट्स को आई होगी, काफी सारे प्रोफेशनल्स को आई होगी जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो कैसे उनको टैकल करना है, उनका क्या रिप्लाई देना है, उनके लिए क्या कंप्लायंसेस करने हैं। तो सी, अगर आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की एडवाइजरी आई है या नहीं आई है, आई भी है, तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इस वेबिनार में तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के सभी प्रोविजंस। उसके लिए हम डेफिनेटली किसी दिन एक स्पेसिफिक वेबिनार रख सकते हैं अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो आपको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करना है कि क्या आपकी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है भी या नहीं है। और वो चेक करने के लिए आपको सेक्शन 90 रीड करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के, और सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस देखने पड़ेगा, और सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग आपको चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। आपने चेक किया तो फर्स्ट थिंग आई कि यस आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको वही बैन 1 बैन 2 वो सभी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। बट दूसरा आता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो उस केस में देखो देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, जहां भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है वहां पे आपको इस मेल का ना ही कोई रिप्लाई करना और इस मेल के ना ही कोई कंप्लायंस करने हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वी कैन से दिस इज वेरी सिंपल pronounce I can say this is just a advisory mail to the companies, to the professional. This was nothing like कि we have to reply, but हाँ अगर आप पे applicable होता है तो आपको immediate compliances करने हैं। पंकज जी का क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई एसबीओ इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी होल्ड्स इंडियन कंपनी, देन वी नीड टू गो टू चेक फॉरेन कंपनीज होल्डिंग्स। यस सर, अगर आपकी कंपनी में किसी फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है तो डेफिनेटली आपको उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को मंगवाना पड़ेगा। उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को नहीं, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आगे से आगे जितने वो ट्री बनेगा आपको सभी के शेयर होल्डिंग पैटर्न मंगवाने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे और उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा। सो इट डजेंट मैटर कि आपकी शेयर होल्डर फॉरेन कंपनी है, इंडियन एलएलपी है, इंडियन पार्टनरशिप है, या फॉरेन पार्टनरशिप है, फॉरेन एलएलसी है, कोई भी है, आपको एनालाइज उसकी शेयर होल्डिंग, उनके कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एसबीओ आपकी कंपनी पे लगता है या नहीं लगता है। बट इन एनी केसेस एसबीओ इज एप्लीकेबल ऑन योर कंपनी, और आपकी कंपनी वो कंप्लायंस नहीं कर रही है, तो दिस इज माय पर्सनल एडवाइस एज अ प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्लीज आप अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट को क्वालिफाई करो अगर कंपनी ने बैन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं किए हैं, बिकॉज मिनिस्ट्री इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब किसी कंपनी पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं बट वो कंपनी एप्लीकेबल नहीं कर रही है, कंपनी ने उनके कंप्लायंस नहीं किए, और एज अ ऑडिटर हमने उनको कहीं ऑडिट रिपोर्ट में या कहीं मेंशन भी नहीं किया, तो आई मस्ट टेल यू कि दिस इज अ नॉन कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स ऑल्सो। we are also liable for the penalties, we are also liable for the adjudication or compounding from the Ministry of Corporate Affairs. So we have to be very careful whenever we are doing any type of, we can say, compliances or any type of audits. अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की अभी हम बात कर रहे थे, एक प्रोविजन होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कंपनीज एक्ट में, और दूसरा प्रोविजन होता है बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की जब भी हम बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं सेक्शन 90 पे, बट हम जब बेनिफिशियल ओनर की बात करते हैं, जब बेनिफिशियल ओनर की बात करते हैं तो सेक्शन 89 की बात करते हैं। सो जब भी हम बेनिफिशियल ओनर की बात करते हैं सेक्शन 89, और सेक्शन 89 की एप्लीकेबिलिटीज मैं ब्रीफ में बता देता हूं बिकॉज बहुत डिटेल में हम पूरा सेक्शन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 89 बोलता है कि व्हेन यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी but you are not the beneficial interest of those share, you are only the shareholder in the register of the company, then provision of the section 8 applicable on the company। अब ऐसा कौन से केसेस में होता है कि जब आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल सॉरी ऐसा कौन से केसेस में होता है कि जब आप कंपनी के शेयर होल्डर तो हो बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। जब एक कंपनी होली ओन सब्सिडरी क्रिएट करती है, एक कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करती है, तो होली ओन सब्सिडरी का मतलब है कि जो WOS है होली ओन सब्सिडरी, उसमें 100% इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की होगी।
बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए। अब एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जहां प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए, तो अगर 100% एक ही कंपनी की होल्डिंग होगी तो 2 शेयर होल्डर कैसे बनेंगे? सॉरी, 2 शेयर होल्डर। तो उस केस में जनरली क्या होता है, जब भी होली सब्सिडरी बनती है तो 100% होल्डिंग होती तो कंपनी की है, बट कंपनी एक शेयर के लिए अपना नॉमिनी अपॉइंट करती है कि एक शेयर के लिए मिस्टर दिस एंड दिस विल बी द नॉमिनी। सो एटलीस्ट देयर विल बी 2 शेयर होल्डर, वन इज कंपनी, अदर इज द नॉमिनी ऑफ द कंपनी। और इससे क्या होता है, कोरम पूरी हो जाती है और कंपनीज एक्ट के मिनिमम 2 शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। सो अब जैसे जहां भी ये होलियन सब्सिडी का केस है, इट इज वेरी क्लियर कि कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में नाम तो मिस्टर ए का आएगा, पर मिस्टर ए इज नॉट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर ऑफ द शेयर्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसमें उसमें जिसका है वो है कंपनी। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव टू बी चेक फॉर द सेक्शन 89। अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जो आप लोगों को एनालाइज करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने एक सिचुएशन डिस्कस की है जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस एप्लीकेबल हो सकती है। जब जिस भी कंपनी पे ये बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं सेक्शन 89 के, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 27 अक्टूबर को एक नया प्रोविजन लेके आए हैं, एक नया अमेंडमेंट लेके आए हैं। अमेंडमेंट इन कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल 2023। अब पहली चीज, ये एप्लीकेबल किस पे है? ये प्रोविजन हर उस कंपनी पे एप्लीकेबल है अदर देन ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में कोई दूसरी कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती, एक सिंगल शेयर होल्डर होता है। तो एक ओपीसी में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अदर देन ओपीसी ये प्रोविजन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, बट कंप्लायंस इस प्रोविजन का उसी कंपनी को करना है जिस कंपनी पे सेक्शन 89 एप्लीकेबल होता है। सो अब एज अ ऑडिटर, एज अ प्रोफेशनल हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी पे सेक्शन 89 एप्लीकेबल होता है या सेक्शन 89 एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हमारी कंपनी पे सेक्शन 89 एप्लीकेबल नहीं होता देन हमें कोई इशू नहीं है, बट अगर हमारी कंपनी पे सेक्शन 89 एप्लीकेबल हो जाता है देन वी हैव टू डू दिस कंप्लायंसेस। इसका कंप्लायंस ये है कि आपको एक पर्सन, कंपनी का एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ डेजिग्नेटेड पर्सन फॉर द बेनिफिशियल ओनर। एज आई जस्ट रीड इट, every company shall designate a person under this rule who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to registrar or any other authority with respect to beneficial interest। आपको कंपनी के एक पर्सन को डेजिग्नेट करना पड़ेगा जो मिनिस्ट्री आरओसी के या किसी भी अथॉरिटी के मांगने पर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट की, और उनको वट एवर इंफॉर्मेशन दे वांट उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि वो डेजिग्नेटेड पर्सन हो कौन सकता है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है देन तो कंपनी सेक्रेटरी ही डेजिग्नेट पर्सन होगा, बट अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई एक की मैनेजर पर्सनल, अब की मैनेजर पर्सनल में जैसे होते हैं एमडी, डब्ल्यूटीडी होते हैं, बट अगर एक की मैनेजर पर्सनल भी नहीं है देन एज ऑन डेट दे हैव मेंशन कि एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो सीएस एंड केएमपी। अब देखो क्या है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नया सर्कुलर आता है ना, तो उसमें एक चीज ये होती है कि बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होती है, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, और समटाइम कुछ एम्बिग्यूटीज भी होती है। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एम्बिग्यूटी का बात करते हैं। मिनिस्ट्री ने बोला आपको एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन, एक पर्सन आपको डेजिग्नेट करना है एज अ बेनिफिशियल ओनर, जो डेजिग्नेटेड एज अ बेनिफिशियल ओनर की इंफॉर्मेशन देने के लिए। बट जहां हम बात करते हैं अ पर्सन और यहाँ मेंशन किया एवरी डायरेक्टर, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है कि एवरी डायरेक्टर विल बी कंसीडर एज अ डेजिग्नेट पर्सन या एक उन डायरेक्टर्स में से हमें डेजिग्नेट करना है। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है। देखो इंटेंट ऑफ लॉ पे जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू माय इंटेंट एवरी डायरेक्टर शुड नॉट बी देयर, बिकॉज एक डायरेक्टर को डेजिग्नेट करेंगे, हम सभी डायरेक्टर्स को डेजिग्नेट करेंगे तो डेजिग्नेशन की जरूरत क्या है? सभी डायरेक्टर वैसे भी लाइबल है किसी भी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे अ डायरेक्टर होना चाहिए, बट अंटिल अनलेस मिनिस्ट्री क्लैरिफाई नहीं करती ये एम्बिग्यूटी रहेगी। बट मैंने अपना व्यू आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अब डेजिग्नेट करेंगे कैसे? कंपनी को एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उनको डेजिग्नेट करने के लिए, कंपनी उनको डेजिग्नेट करने के लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देगी। और इन्फॉर्म कैसे करना आरओसी को? अब मिनिस्ट्री ने ना आरओसी को इन्फॉर्म करने के लिए कोई भी फॉर्म नहीं दिया कि आप डेजिग्नेट करो और आरओसी में फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी फाइल करो, नहीं। उन्होंने बोला इस साल पहली बार ये प्रोविजन आया है, तो जो 31 मार्च 2024 की एनुअल रिटर्न फाइल करोगे ना एमजीटी 7 और 7A,
उन एनुअल रिटर्न में आपको उस डेजिग्नेट पर्सन की इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी। अभी 31 मार्च 2023 की एनुअल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो 31 मार्च 2024 की जो फाइल करेंगे उसके MGT 7 में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज बहुत क्लियरली देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के MGT 7 में डेफिनेटली मिनिस्ट्री पहले अमेंड करेगी, तब जाके ये काम होगा, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है। सो अभी आपको डेजिग्नेट करके कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना है, बट आप आज किसी पर्सन को डेजिग्नेट करते हैं, इन फ्यूचर उसे चेंज करते हैं, जब भी आप चेंज करेंगे आपको ROC में GNL2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सो दो एम्बिग्यूटीज है, मैंने बोला कि एक तो पहली बार जब हम डेजिग्नेट करते हैं कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कोई नहीं करना है अनटिल अनलेस मिनिस्ट्री कुछ नहीं लेके आती। सेकंडली, एवरी डायरेक्टर का क्या मीनिंग है, कि अगर एवरी डायरेक्टर इज कंसीडरिंग एज अ सिंगल डायरेक्टर और मोर देन वन डायरेक्टर फॉर दिस प्रोविजन। These are the very latest two amendment under Companies Act जो आए हैं, और इनका डेफिनेटली इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दिख बहुत छोटे रहे हैं बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब एक थर्ड और लास्ट अमेंडमेंट में डिस्कस करना चाहूंगा। स्टिल आई विल अगेन से, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आज हमें जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम बैठे हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल वट एवर पॉइंट्स इज देयर। तो मैं अपना थर्ड आज का जो अमेंडमेंट है वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे तो वी विल डिस्कस। अब ये थर्ड अमेंडमेंट है LLP एक्ट के अंदर। वी नो कि LLP एक्ट, LLPs का जो फॉर्मेट है, एक LLP जो है वो पहले पॉपुलर नहीं थी इंडिया में, बट लास्ट फॉर 7 to 8 ईयर जब से न्यू कंपनीज एक्ट आया उसके बाद LLP मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया में। बहुत LLPs बन रही है आज की डेट में, प्रोफेशनल्स की बहुत LLPs है। नॉट ओनली हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की, प्रोफेशनल्स ने भी बहुत सारी LLPs बनाई हुई है फॉर देयर वर्क, फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज, और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी होंगे जो LLPs हैं। तो LLP एक में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है। दिस इज बाय द LLP थर्ड अमेंडमेंट रूल 2023, जो 27 अक्टूबर को ही आया। तो 27 अक्टूबर को बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं जिन सभी को आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत ऐसे हैं कि सभी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। सो जब LLP एक्ट की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर थर्ड अमेंडमेंट रूल लेके आए हैं, और उन्होंने LLP रूल्स 2009 है जिसकी जो आज तक चलते आ रहे हैं और जिसके बेस पे LLP कंप्लायंस करती है। LLP रूल 2009 में रूल 22 के बाद एक न्यू रूल ऐड कर दिया है, रूल 22A। रूल 22A बात करता है रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स। आज तक जब भी हम LLPs की बात करते हैं ना, एज अ प्रोफेशनल कंप्लायंस की बात करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि LLPs इसलिए बेटर है क्योंकि LLPs में कंप्लायंस कम करने पड़ते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता बोलने का, या कोई पॉइंट नहीं होता। बट जनरली यही आता है कि LLP इसलिए पॉपुलर है कि LLPs में कंप्लायंस कम होते हैं। कंप्लायंस कैसे कम होते हैं? LLP को कोई रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं होती है, LLP को कोई मिनट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि LLP पे तो कोई सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नहीं लगते, LLP के ऊपर मिनट्स का कोई प्रोविजन नहीं है, रजिस्टर का प्रोविजन नहीं है। इसलिए वी ऑलवेज से कि LLP पे कंप्लायंसेस कम होते हैं, इट इज बेटर देन कंपनी, अदरवाइज कोई और चीज हमारे पास नहीं है। इवन तो हम बात करते हैं LLP और कंपनी को जब कंपेयर करते हैं, कंपनी पे जो टैक्सेशन रेट है LLP से कम है, कंपनी पे LLP से कम टैक्स एप्लीकेबल होता है। सेकेंड थिंग, कंपनीज के केस में हम बात करें तो स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन बहुत जल्दी मिलती है, कंपनीज को फॉरेन फंडिंग अलाउड है जो LLPs को नहीं अलाउड है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कंपनी में बेनिफिशियल है जो LLP में नहीं है। बट एक पॉइंट की जो कंप्लायंस की बात आती है तो हमेशा डेफिनेटली ये बोलते हैं कि कंपनी से बेटर LLP फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंसेस। तो धीरे धीरे मिनिस्ट्री ने LLP में भी कंप्लायंसेस बहुत इंक्रीज कर दी है, और रेगुलरली मिनिस्ट्री LLP में कंप्लायंसेस को इंक्रीज कर रही है। जैसे कि मैं बात करूं LLP में कंप्लायंसेस की, अभी जो नोटिफिकेशन में डिस्कस कर रहा हूं 27 अक्टूबर की ये नोटिफिकेशन है विच आई एम डिस्कसिंग विद यू। एज पर दिस नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ने एक नया रूल एड ऑन कर दिया है 22A, दैट इज रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स। आज तक LLP में रजिस्टर ऑफ पार्टनर जैसा कोई प्रोविजन नहीं था, LLP में कोई रजिस्टर्स बनते ही नहीं थे, बट अब इन्होंने LLP में रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स का नया प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिया है। तो लेट डिस्कस क्या बोलता है प्रोविजन। ये प्रोविजन बोलता है every LLP, pehli thing, it is applicable on the every LLP, although there is a concept of the small LLP or non-small LLP is also in the LLP Act, but this provision is applicable on the every LLP। यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं किया कि स्मॉल पे लगाएंगे या नॉन स्मॉल पे लगाएंगे, this provision will be applicable on each and every LLP। So every LLP shall, from the date of its incorporation,
फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकॉर्पोरेशन की डेट से मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ पार्टनर इन फॉर ए विच शैल कैप्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। सो फर्स्ट थिंग, एलएलपी के जो रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ पार्टनर, ये हर एलएलपी पे एप्लीकेबल होगा, चाहे स्मॉल हो, चाहे नॉन स्मॉल हो, चाहे न्यू हो, चाहे ओल्ड हो। नंबर टू, अब यही क्वेश्चन आता है माइंड में कि अच्छा रजिस्टर एप्लीकेबल हो गए तो रजिस्टर कब से बनाने हैं। 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है, 27 अक्टूबर को जो हमारे पार्टनर है वहां से लेके आगे के लिए बनाने हैं, या कोई एक न्यू डेट मिनिस्ट्री बताएगी। अब यहाँ पे इन्होंने ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया और एक बहुत बड़ा वी कैन से कंप्लायंस क्रिएट कर दिया है फॉर द प्रोफेशनल्स कि हर एलएलपी को जो ये रजिस्टर बनाना है वो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाना है। इनकॉर्पोरेशन से लेके आज तक का रजिस्टर बनाना है। हो सकता है मेरी एलएलपी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी या 2010 में, आज 13-14 साल हो गए मेरी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट हुए। 13-14 साल में बहुत बार मेरे पार्टनर चेंज हुए, मैं बोलता हूँ कि 10 से 15 बार पार्टनर चेंज हो गए, होते भी है बहुत एलएलपीज में। तो मुझे फर्स्ट डेट जब इनकॉर्पोरेशन पे कौन पार्टनर था, वहां से लेके कब कब क्या क्या चेंजेस आए, और 27 अक्टूबर आज तक कौन पार्टनर है, वो सारा हमें देखना पड़ेगा और वो सारा बनाना पड़ेगा। तो आपको एलएलपी की सारी पुरानी डीड, सारे पुराने फॉर्म्स चेक करने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्लायंस ऑफ दिस रूल। सो होप आई एम क्लियर। वन थिंग, एवरी एलएलपी। सेकंड थिंग, सिंस इनकॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है 27 अक्टूबर कि मतलब पहले तो 10 बार पार्टनर चेंज हो गए, बस 27 अक्टूबर को मिस्टर ए और बी हम वहीं से चेंज स्टार्ट कर रहे रजिस्टर। नहीं, रजिस्टर स्टार्ट होगा इनकॉर्पोरेशन की डेट से, और रजिस्टर बनाना है इनकॉर्पोरेशन की डेट से। जो भी एलएलपी 27 अक्टूबर 2023 को जो भी एलएलपी एग्जिस्टेंस में थी या है, उन सभी एलएलपी को 27 अक्टूबर से 30 डेज के अंदर ये रजिस्टर बनाना है। तो दैट 30 डेज इज एंडिंग ऑन द 26 नवंबर 2023। 26 नवंबर 2023 तक एवरी एलएलपी को जो 27 अक्टूबर को थी उसको रजिस्टर बनाना है। और कोई नई एलएलपी बनती है तो उसको तो 27 अक्टूबर के बाद अगर कोई नई एलएलपी बनती है तो उनको तो वेरी फर्स्ट डे से ही रजिस्टर बनाने हैं। So we have to be very clear on this point from the every point of view. So किसी का कोई क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज आप साइमल्टेनियसली पूछते रहिए। आई विल डिस्कस फॉर 10 more minutes some provisions, और उस 10 मिनट्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट होगा तो वो भी हम साथ के साथ टेकअप करते रहेंगे। सो रजिस्टर अब बनेगा कैसे, रजिस्टर का क्या फॉर्मेट है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर का फॉर्मेट क्या है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया रजिस्टर का जो फॉर्मेट है फॉर्म 4A। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म 4A दिखता कैसा है। अभी हमने कुछ कंपनीज के लिए तो एक्सेल में बनाए हैं रजिस्टर्स, बिकॉज मिनिस्ट्री तो एक्सेल देते नहीं है, वो तो पीडीएफ देती है, तो हमें खुद को ही बनाने पड़ेंगे। दिस इज फॉर्म 4A, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। सो फॉर्म 4A का फॉर्मेट ये है, नाम लिखेंगे एलएलपी, एलएलपीआई नंबर लिखेंगे, एलएलपी का नाम लिखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे। इस इंफॉर्मेशन के बाद फिर हमें पर्सनल डिटेल ऑफ पार्टनर्स मेंशन करना है, उनकी पार्टनरशिप्स मेंशन करनी है, अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है तो उसकी डिटेल मेंशन करनी है, कोई नॉमिनी है, कोई सजेशन है, उन सभी की डिटेल्स हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आप चाहे वर्ड में बनाए, एक्सेल में बनाए, और उसका प्रिंट आउट लेके फिर साइन करा के रिकॉर्ड में रखे, बट ये बनाना पड़ेगा। और जैसा कि ये रजिस्टर है तो रजिस्टर देखो कहीं फाइल तो होते नहीं है, ये एलएलपी को अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। तो एलएलपी को अपने रिकॉर्ड में रखना है, और उस एलएलपी के अगर आप ऑडिट करते हो तो मेक श्योर कि जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आप इन रजिस्टर्स को भी चेक करो। रजिस्टर नहीं है तो ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, और आपको फिर ये क्वालिफाई करना पड़ जाएगा अपनी रिपोर्ट में कि कंपनी ने रजिस्टर्स मेंटेन नहीं किए हैं। So make sure about these compliances. So this is also one of the latest compliances under LLP Act कि सभी LLPs को अपना रजिस्टर अब मेंटेन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर ये प्रोविजन बोलता है अब 27 अक्टूबर के बाद आपने रजिस्टर बनाया, बिकॉज पहली टाइम लो आया है। अब इसके बाद जब जब आपके पार्टनर्स में चेंज आएगा, पार्टनर के कंट्रीब्यूशन में, पार्टनर कोई अपॉइंट होगा, कोई सीज होगा, कोई डिटेल्स चेंज होगी पार्टनर की, तो चेंजेस के 7 डेज के अंदर आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्टर के अंदर। तो 7 डेज का प्रोविजन है, 7 डेज के अंदर आपको अपने रजिस्टर्स में एंट्री करनी पड़ेगी।
उसके बाद अगर आप एंट्री करते हो तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। तो डेट्स पे प्रॉपर फोकस कीजिएगा कि जो एंट्रीज होगी वो 7 डेज के अंदर ही आपको करनी पड़ेगी। सेकंड आता है डिक्लेरेशन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। अभी हमने बात की थी कि देयर आर द टू प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट, वन इज बेनिफिशियल ओनर, सेकंड इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर के केस में हम कंपनीज एक्ट में बात करते हैं, सेक्शन 89 एप्लीकेबल होता है, और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के केस में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 90 एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो ये डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर के जो प्रोविजन है, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट ये रेप्लिका है सेक्शन 89 के, ये एसबीओ वाले प्रोविजन नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि एलएलपी पे एसबीओ लग गया है, तो मेक श्योर आप बोल सकते हो कि एलएलपी पे एसबीओ के प्रोविजन नहीं लगे हैं, एलएलपी पे बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजन लगे हैं जो सेक्शन 89 में दिए हैं कंपनीज एक्ट की। अब इस बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजन क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट तो बताया था जब हम कंपनीज एक्ट का डिस्कस कर रहे थे कि बेनिफिशियल ओनर कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको वो होल्डिंग सब्सिडी वाला, होली ओन सब्सिडी वाला एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल आप यहाँ भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। आप देखिए क्या है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बोला जो पर्सन, जिस पर्सन का नाम एज अ पार्टनर आपने कंपनी के रजिस्टर्स में लिखा है, एज एलएलपी के रजिस्टर्स में लिखा है, और जिस पर्सन को एज अ पार्टनर एलएलपी ने आइडेंटिफाई किया है, उस पर्सन का नाम तो आ गया एज अ पार्टनर, बट उसका एक्चुअल में बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का है। तो वो पर्सन एक डिक्लेरेशन देगा, जिस पर्सन का नाम आपके रजिस्टर में है वो पर्सन फॉर्म 4B में कंपनी को एक डिक्लेरेशन देगा विद इन 30 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। वो बताएगा कि मैं रजिस्टर्ड ओनर हूं बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का है। फिर जो एक्चुअल पर्सन बेनिफिशियल ओनर है वो एक फॉर्म 4C फाइल करेगा एलएलपी के पास विद इन 30 डेज कि मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है बट मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूँ। इन दोनों को रिसीव होने के बाद कंपनी एक फॉर्म 4D फाइल करेगी आरओसी के पास विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म 4B और C कि ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, और कंपनी इन इन्फॉर्मेशन को आरओसी में सबमिट करेगी। ये पहले प्रोविजन कंपनीज एक्ट में होते हैं। कंपनीज एक्ट में अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म नंबर हमारे होते हैं MGT 6, MGT 4, MGT 5 और MGT 6, और यहाँ पे है फॉर्म 4B, 4C और 4D। 4B देगा रजिस्टर्ड ओनर, 4C देगा बेनिफिशियल ओनर, और फॉर्म D एलएलपी फाइल करेगी आरओसी के पास। So these are the two latest amendment under the LLP Act by the Ministry of Corporate Affairs. So जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं ये कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट में एज वेल एज एलएलपी एक्ट में। इन दोनों अमेंडमेंट के बाद एक चीज बहुत क्लियर है, नंबर वन, मिनिस्ट्री इज वेरी मच फोकस अबाउट द बैकडेटेड कंप्लायंसेस। मिनिस्ट्री डोंट वांट कि कोई भी बैकडेटेड कंप्लायंसेस हो। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है डीपीटी 3। अब डीपीटी 3 का पर्पज ही मिनिस्ट्री का फाइल करने का 30 जून को ये है कि 30 जून तक आपकी लोन्स की फिगर और बोरोइंग की फिगर्स, एडवांसेस की फिगर फ्रीज हो जाए। अब जब आप डीपीटी 3 फाइल करते हो और बैलेंस शीट आप बनाते हो अगस्त सितंबर में, तो कभी भी आपकी फिगर डीपीटी 3 से डिफरेंट नहीं हो सकती, वो फ्रीज हो चुकी है, तो वो आपको वहां पे फ्रीज रखनी पड़ेगी। सेम अब इन्होंने जो डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल किए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उस डीमेट के प्रोविजन का इम्पैक्ट ये आएगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल हुए हैं कि उनके कारण अब कोई भी बैकडेटेड ट्रांसफर, बैकडेटेड राइट इशू, बैकडेटेड कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज है एज अ प्रोफेशनल। बट हाँ, अगर हम किसी कंपनी के ऑडिटर हैं, हम किसी कंपनी के एडवाइजर है, वो ये ऐसे कंप्लायंसेस नहीं कर रही है, तो हमें इनको नोटिफाई करना पड़ेगा। इन कंप्लायंसेस की हमें क्वालिफिकेशन भी ऑडिटर रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। फिर सेकंड आता है एलएलपी एक्ट में। अभी 26 नवंबर तक सभी को रजिस्टर बनाने हैं, तो आई थिंक हम सभी को ये टास्क शुरू कर देना चाहिए कि हम जितनी भी एलएलपी को कंसल्टेंसी देते हैं, जितनी भी एलएलपी के कंप्लायंसेस करते हैं, उनके ऑडिट करते हैं, किसी भी लिंक वे से हम किसी भी एलएलपी के एज अ प्रोफेशनल अटैच्ड है, तो हमें उन एलएलपी को एडवाइस करना चाहिए। एडवाइस करके हमें उनके रजिस्टर्स बनवाने चाहिए सभी के, उनकी साइनिंग एंड ऑल करके उनको प्रॉपर एलएलपी के रिकॉर्ड में रखना चाहिए। थर्ड, अब एलएलपी में अगर बेनिफिशियल ओनर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला, तो मेक श्योर कि आप 30 दिन के अंदर, 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, 26 नवंबर तक आपको सभी पर्सन से फॉर्म 4B और 4C लेने हैं, और उसके बाद 30 डेज में आपको आरओसी में फाइल भी करने हैं। तो आई कैन से मैक्सिमम 25 दिसंबर तक आपको 4D फाइल करना है आरओसी में फॉर ऑल एलएलपी जिसमें बेनिफिशियल और इंटरेस्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं।
So hope I have clarified so many points in this webinar. Although this was a 1 hour webinar, इसमें हमने ट्राई किया कि जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट में वो हम डिस्कस कर पाए आप सभी से, और हमने प्रॉपरली ट्राई किया डिस्कस करने की भी। सब किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस, अदरवाइज आई कैन हैंड ओवर दैट टू सुमित जी फॉर हिज व्यूज ऑन द अमेंडमेंट्स। तो अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, और अभी भी क्या है कि कंपनीज एक्ट में ना मिनिस्ट्री इज कमिंग विद मोर अमेंडमेंट्स, सो वी हैव टू बी फोकस, क्योंकि और भी अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट में आने वाले हैं। सो एज अ प्रोफेशनल दिस इज माय एडवाइस एवरीवन, प्लीज कीप अपडेट योर सेल्फ, बिकॉज इतने सारे जो अमेंडमेंट आ रहे हैं ना, हम सभी को उन पे फोकस करना पड़ेगा और उन सभी अमेंडमेंट को एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई भी करवाना पड़ेगा। बिकॉज आज के दिन में सिनेरियो ऐसा है, आई मस्ट टेल यू अबाउट सम ऑफ माय क्लाइंट। जिस दिन 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था डीमेट वाला, सेम डे आई रिसीव द कॉल फ्रॉम माय क्लाइंट कि सर इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हम कैसे एप्लीकेबल होगा। दिस इज द एरा ऑफ द सोशल मीडिया। इन दिस सोशल मीडिया एरा में क्या है कि एवरीथिंग इज वेरी फास्ट, इंफॉर्मेशन ट्रेवल वेरी फास्ट फ्रॉम एवरीवेयर, so we have to be very much careful or very much compliant about all these provisions. So now Sumit ji here, so this is from all from my side, or jo questions they I have discussed with everyone. Yes, Devesh bhai, and I again request to all participants, if you have any question before concluding in 2 minutes, we can discuss. Otherwise, wonderful discussion by Devesh ji, and briefly he tell about the provisions जो हमारे companies पर impact कर रहे हैं. Someone is asking for the brief, so Sumit ji आप ये recording तो I think upload करेंगे ही. Yes, recording will be shared. So definitely whoever message this, आप लोग recording में definitely पूरा session anytime you can listen or you can understand the latest compliances. Because जितनी amendment जितनी speed से मिनिस्ट्री करती है आजकल, regular amendments आते हैं, so we have to be very focused and update ourselves. Right. So many changes are happening day by day in Companies Act. Earlier Companies Act में changes नहीं होते थे कि ठीक है जो है साल में. Last query received from Pankaj Sharma. कार्तिक का एक पहले है कार्तिक जी की अबाउट एसबीओ प्रोविजन ऑफ एलएलपी। सर एज आई सेड कार्तिक जी की एसबीओ के प्रोविजन अभी एलएलपी पे नहीं लगे हैं। जैसा मैंने बोला ना, देयर आर द टू टाइप ऑफ प्रोविजन, वन इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट के प्रोविजन, सेकंड इज एसबीओ के प्रोविजन। एसबीओ के प्रोविजन आज भी एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल है। हाँ, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के प्रोविजन एलएलपी पे एप्लीकेबल है। उसमें एक एग्जांपल आप डेफिनेटली यही दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंपनी के केस में भी दिया था कि आपकी एलएलपी ने किसी कंपनी की 100% होल्डिंग ली हुई है, तो कंपनी में तो 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, तो 99.99 आपकी एलएलपी की होगी और 1 शेयर आप किसी नॉमिनी को देंगे। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन बी देयर इन द एलएलपीज आल्सो, जहां पे फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसी पर्सन की, फॉर एन एग्जांपल आपकी एलएलपी में किसी कंपनी ने या किसी पर्सन ने होल्डिंग्स की हुई है। अब उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, रजिस्टर्ड ओनर कौन है। हो सकता है कि आपकी एलएलपी में इन्वेस्टमेंट तो है सुमित जी की, नाम है रजिस्टर में मेरा, मैंने इनके बिहाफ पे एज अ नॉमिनी अगर शेयर लिया, कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो देन दिस प्रोविजन ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। One Ravi. Please schedule webinar on SBO. Okay. Specific he is asking Pankaj ji. राइट, कि एसबी पर सेमिनार काफी डेफिनेटली. अमेंडमेंट है और मिनिस्ट्री काफी मेल्स भेज रही है आजकल एसबीआई के ऊपर, सो एवरीबॉडी इज फोकस की कैसे टैकल करना है उन्हें, डेफिनेटली कैसे प्लान करेंगे, इस पे मोर डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली इस पर डिस्कस करेंगे फर्दर आफ्टर दीपावली. We will get time. So now it's time to close, and the very wonderful discussion as always. What is the what is the one last query? What is the provision, penal provision? पैनल प्रोविजन आई विल शेयर, Right. बिकॉज एक्चुअली पैनल प्रोविजन मैंने प्रेजेंटेशन में मेंशन नहीं किया, हर सेक्शन की Okay. अपनी पेनल्टीज और चीजें हैं, तो दैट आई विल शेयर कि उस सेक्शन की क्या है। Definitely राधिका जी presentation he will share, तो उसमें जो भी these penal provision will also be added. Yes, yes, we will add that. So with this, thank you so much Devesh bhai for your wonderful discussion, and thanks to all participants for joining, and definitely stay tuned and wish you a very happy Diwali in advance. Thank So you.
Happy festive time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Thanks for the patience listening. Thank you.